السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں پیر کو ووٹنگ، تمام تیاریاں مکمل۔ نریندر مودی نے ہگلی میں کہا، کانگریس کو شہزادی کی عمر سے کم سیٹیں ملیں گی۔ گارنٹی کر آنے والوں کو لوگ گھنٹی بجا کر باہر پھینک دیں گے، اکھلیش یادو کا بیان۔ کرکٹ کے سٹے میں 2 کروڑ روپے ہارنے پر باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا، تلنگانہ کے ضلع میدک میں واقعہ۔ وہ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تلنگانہ میں پیر کو ووٹنگ، تمام تیاریاں مکمل۔ تلنگانہ میں پیر کو ہونے والی ووٹنگ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جس میں 17 لوک سبھا سیٹوں اور سکندرآباد اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات شامل ہیں۔ یہاں ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہوگی، جبکہ ملک میں لوک سبھا ووٹنگ کا یہ چوتھا مرحلہ ہوگا۔ ریاست میں 1 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ خواتین ووٹروں سمیت 3 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کے 35,356 پولنگ اسٹیشنز پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی امید ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے 525 امیدوار میدان میں ہیں۔ ملک بھر میں ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ پیر کی صبح 5:30 بجے موک پولنگ کے بعد ریاست میں ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی۔ ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر CEO وکاس راج کے مطابق پارلیمانی حلقوں کے معاونات سے متاثرہ اسمبلی حلقوں میں پولنگ شام 4 بجے ختم ہو جائے گی، جبکہ ریاست کے باقی پارلیمانی حلقوں اور سکندرآباد اسمبلی حلقے میں پولنگ شام 6 بجے ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر 2,54,000 سے زائد پولنگ عملہ تعینات کر کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاست میں 9,900 اہم پولنگ اسٹیشنز کی نشاندہی کی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس روی گپتا نے بتایا کہ ہموار اور منظم ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے 73,000 سے زیادہ ریاستی پولیس اہلکاروں، سینٹرل آرم پولیس فورسز کی 164 کمپنیوں اور دیگر خصوصی یونٹس کو تعینات کر کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاست میں 16 مارچ 2024 کو انتخابی ضابطۂ اخلاق یعنی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ MCC نافذ ہونے کے بعد سے تقریباً 320 کروڑ روپے ضبط کیے جا چکے ہیں۔ نریندر مودی نے ہگلی میں کہا، کانگریس کو شہزادی کی عمر سے کم سیٹیں ملیں گی۔ BJP کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے ہگلی میں ایک انتخابی ریلی میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو شدید نشانہ بنایا۔ مودی نے کہا کہ کانگریس کو شہزادی کی عمر سے کم سیٹیں ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ موجودہ الیکشن ملک کی قیادت کے انتخاب کا الیکشن ہے اور ملک کے عوام کے آشیرواد صرف BJP کے پاس ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک نے پچھلے 10 سالوں میں دیکھا ہے کہ مودی کی مضبوط حکومت قومی مفاد اور عوامی مفاد میں ہے۔ 3 مرحلے کے انتخابات مکمل ہو چکے، چوتھے مرحلے کی ووٹنگ کل ہونے جا رہی ہے۔ انتخابات کے 3 مراحل کے بعد میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ BJP اور NDA 400 کو پار کر جائیں گے۔ اب 400 پار کوئی نعرہ نہیں، یہ 400 پار ملک کی کروڑوں عوام کی قرارداد بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ BJP کی قیادت والی NDA کو 400 سے آگے ضرور لے جائیں گے، لیکن کانگریس کے جو شہزادے ہیں، ان کی جتنی عمر ہے، کانگریس کو اس سے بھی کم سیٹیں ملنے والی ہیں۔ گارنٹی کرانے والوں کو لوگ گھنٹی بجا کر باہر پھینک دیں گے، اکھلیش یادو کا بیان۔ یہ پہلا الیکشن ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ گارنٹی لے کر آ رہے ہیں کہ اس بار لکھنؤ اور موہن لال گنج دونوں اکٹھے ہوں گے اور اپنی گھنٹی بجائیں گے۔ یہ باتیں سماجوادی پارٹی SP کے صدر اکھلیش یادو نے کہی، جو اتوار کو موہن لال گنج انتخابی ریلی میں پہنچے تھے۔ چوتھے مرحلے کی انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد قنوج سے انتخاب لڑ رہے اکھلیش یادو ایک بار پھر BJP حکومت پر مکمل حملہ آور دکھائی دیے۔ حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے خود پارٹی امیدواروں کی انتخابی مہم کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ آج انہوں نے BJP کی ڈبل انجن والی حکومت کو گھیر لیا۔ موہن لال گنج لوک سبھا حلقے میں سماجوادی پارٹی اور انڈیا اتحاد کے امیدوار RK چودھری کی حمایت میں ملیح آباد کے کسمنڈی روڈ میں منعقدہ جلسہ عام کے اسٹیج سے اکھلیش نے عوام سے بڑی جیت کی اپیل کی۔ حیدرآباد میٹرو ٹرین سے متعلق L&T کا اہم فیصلہ۔ میٹرو ٹرین
जिसे मनिहारता हैदराबाद कहा जाता है, जल्द ही फ़रोख्त के लिए पेश किया जाएगा। LNT के सदर, मुस्तकिल डायरेक्टर और CFO आर शंकर रामन ने खुद ऐलान किया कि वो इस प्रोजेक्ट की इंतज़ामी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़रोख्त के हवाले से फ़ैसला 2026 के बाद किया जाएगा। उन्होंने नतीजा अख़ज़ किया कि कंपनी हैदराबाद मेट्रो के इंतज़ाम से वो सिर्फ इस वजह से दस्तबरदार हो रही है कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत के नाम पर लाई गई महालक्ष्मी स्कीम है। बताया जाता है कि मुफ्त बस स्कीम से मेट्रो की आमदनी मुतासिर हुई। उन्होंने ख़बरदार किया कि तेलंगाना RTC भी मुफ्त बस स्कीम से दिवालिया हो सकती है। उन्होंने अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल बिजनेस टुडे TV को दिए गए इंटरव्यू में कई अहम तबसरे किए, जिसमें इनका बयान कि हम हैदराबाद मेट्रो के इंतज़ाम से दस्तबरदार होना चाहते हैं काफ़ी सनसनीखेज़ है। उन्होंने कहा, हम 2026 के बाद इस पर फैसला करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तलबा और नौजवानों के साथ फुटबॉल खेला। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ फुटबॉल खेला। चीफ मिनिस्टर कुछ दिनों से रियासत में इंतखाबी मुहिम में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। इतवार की सुबह वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने तलबा के साथ फुटबॉल खेला। रेवंत रेड्डी के साथ MLC बालामुरी वेंकट, MP अनिल कुमार यादव, SCU NSUI यूनिट SCU के तलबा ने भी फुटबॉल खेला। चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन MA फ़हीम, TSAT के CEO वेणुगोपाल रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला के फुटबॉल खेलने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। बताया गया है कि खेल के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जूता फट गया, जिस पर उन्होंने जूते के बगैर ही अपना खेल जारी रखा। आंध्राई अवाम की बड़ी तादाद आबाई मकामात रवाना, टोल प्लाजा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर हुजूम। हैदराबाद में रिहाइश पजीर आंध्र प्रदेश के रायदहिंदगान की बड़ी तादाद वोट का हक इस्तेमाल करने अपने आबाई मकामात को रवाना हुई है, जिसकी वजह से टोल प्लाजों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ देखी गई। नाकाफ़ी बसों की वजह से हालात बहुत ख़राब थे। दूसरी जानिब विजयवाड़ा, गुंटूर, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनों में काफ़ी भीड़ देखी गई। सिकंदराबाद, नामपल्ली और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आवाम का हजूम देखा गया। टोल प्लाजों पर गाड़ियों की आमदरफ्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इंतखाबात के पेश नज़र पंतंगी टोल प्लाजा पर काफ़ी रश देखा गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश के रायदहिंदगान अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए अपने आबाई मकामात की तरफ रवां दवां थे। वो तमाम लोग जो नौकरी और रोज़गार के सिलसिले में हैदराबाद में आबाद हैं, वोट डालने के लिए आंध्र प्रदेश जा रहे थे और तमाम सड़कों पर फर्राटे भरती गाड़ियों को देखा जा रहा है। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर ट्रैफिक जाम है। ख़ासतौर पर लोग अपनी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़बरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। आंध्र प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसे में 2 हलाक, बाइक फ्लाईओवर की साइड वाल से टकरा गई, नौजवान नीचे गिर पड़े। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रूनुमा दिलखराश सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कल रात उस वक्त पेश आया जब विशाखापट्टनम के NAD फ्लाईओवर पर तेज़ रफ्तारी से बाइक फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। हादसा इतना ख़तरनाक था कि 2 नौजवान फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े। हादसे का मंजर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन विजयम्मा ने अपनी खामोशी तोड़ी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी की वालदा YS विजयम्मा ने हफ्ते के रोज़ हल्के लोकसभा कड़पा के अवाम से अपील की है कि वो इनकी बेटी व कांग्रेस उम्मीदवार Y शर्मिला के हक़ में अपना वोट दें। शर्मिला हल्के लोकसभा कड़पे से कांग्रेस टिकट पर इंतखाब लड़ रही हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन अपनी खामोशी तोड़ते हुए विजयम्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए हल्के के रायदहिंदों से अपील की कि वो इनकी दुख्ता शर्मिला को हल्के कड़पे से मुंतखब करें। गुज़िश्ता 2 बरसों से सरगर्म सियासत से दूर विजयम्मा बताया जाता है कि अमेरिका में मुकीम है। शर्मिला हल्के कड़पा से अपने चचाजाद भाई व मौजूदा MP YS अविनाश रेड्डी के मद्दे मुकाबिल हैं। शर्मिला ने हल्के से अविनाश रेड्डी को दोबारा टिकट देने पर अपने हकीकी भाई जगनमोहन रेड्डी को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि चचा व साबिक़ वज़ीर विवेकानंद रेड्डी के कत्ल केस में CBI ने अविनाश रेड्डी को मुल्ज़िम बनाया है। साल 2022 में विजयम्मा ने YSRCP के एजाज़ी सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद बेटी शर्मिला की तायद की, जिन्होंने YSR तेलंगाना पार्टी तश्कील दी थी। ताहम उन्होंने इस साल के अवाइल में अपनी पार्टी को कांग्रेस में दम कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस क़यादत ने शर्मिला को सदर प्रदेश कांग्रेस आंध्र प्रदेश के ओहदे पर फायज कर दिया। మీ విజయమ్మను రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ప్రేమించే వారందరికీ, రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులకు, కడప లోక్సభ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ మనవి చేస్తున్నాం. ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు ఎంతగానో ప్రేమించారు, అభిమానించారు, ఆయన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. ఈరోజు
అదేవిధంగా షర్మిలమ్మ కూడా ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చి పార్లమెంట్కి నిలబడి ఉంది. ఈరోజు ఆ బిడ్డను ఆశీర్వదించమని, పార్లమెంట్కి పంపమని, ఆయనలాగా మీకు సేవ చేసే అవకాశం ఆమెకి ఇవ్వమని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం. क्रिकेट के सट्टे में 2 करोड़ रुपए हारने पर बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया। तेलंगाना के जिले मेदक में वाक़या। क्रिकेट के सट्टे में 2 करोड़ रुपए हारने पर एक बाप ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले मेदक के चिन्ना शंकरम पल्ली में पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त सत्यनारायण के तौर पर की गई, जो अपने बेटे मुकेश की क्रिकेट सट्टाबाजी में रकम की महरूमी की आदत से काफ़ी मायूस था। इसने अपने बेटे 28 साल मुकेश कुमार को इस सिलसिले में काफ़ी समझाने की कोशिश की, ताहम वो सट्टेबाजी में रकम मुसलसिल हार रहा था। इस मसले पर दोनों बाप और बेटे में हफ्ते की शब काफ़ी ज़्यादा बहस और तकरार हुई, जिसके बाद सत्यनारायण ने अपने बेटे मुकेश पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुकेश मौके पर ही हलाक हो गया। सत्यनारायण चिघुंटा मंडल के मलयाल में ट्रैक मैन के तौर पर काम करता था। अरकान ख़ानदान ने कहा कि मुकेश ने अपने मकान और फ्लैट को भी इस सट्टेबाजी के लिए फ़रोख्त कर दिया था। मुकेश को बीवी के अलावा 2 बच्चे शामिल हैं। तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश, आदिलाबाद और मेदक में बिजली गिरने से बाप और बेटा समेत 3 हलाक 4 ज़ख्मी। रियासत तेलंगाना के कई अजला में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के दौरान बिजली गिरने की वजह से आदिलाबाद और ज़िले मेदक में 3 अफराद की मौत हुई। ज़िले आदिलाबाद जायंत मंडल के गमा में बारिश के दौरान बिजली गिरने की वजह से जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दीगर 4 ज़ख्मी बताए गए। अजला संगारेड्डी और मेदक गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश से कई मकामात पर आर्जी छतों को नुकसान पहुंचा। मेदक के पिद्दाशंकरम पेट के रामूजी पेट में बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाक़े में बाप बेटे की मौत हो गई। महलुकीन की शिनाख्त शिवराज 15 साल, शिवा रामुलू 45 साल के तौर पर की गई। इसी तरह मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद, निज़ामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद में भी बारिश की इत्तलात हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में आइंदा 4 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की गई है। हम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर वापस लेंगे, अमित शाह का बयान। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि हम पाकिस्तान का एहतराम करें, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर POK हिंदुस्तान का हिस्सा है और हम इसे वापस ले लेंगे। इतवार के दिन रियाली से खिताब में अमित शाह ने पूछा, क्या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर POK वापस नहीं लेना चाहिए? कांग्रेस ने कश्मीर को कई साल तक नाजायज़ बच्चे की तरह रखा, लेकिन हमने आर्टिकल 370 बर्खास्त कर दिया, वहाँ दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया और मुल्क की सरहदें महफूज कर दी। वोट बैंक खुशामद के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाना तनकीद बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि इन जमातों ने राम मंदिर को 70 साल तक लटकाए रखा। हमने इन्हें राम मंदिर के इफ्तिताह में मदऊ किया, लेकिन वो अपने वोट बैंक की वजह से नहीं आए। वज़ीर दाखिला ने आवाम से पूछा कि इंडिया ब्लॉक ने अगर इलेक्शन जीत दिया तो वज़ीर आज़म कौन होगा? या शरद पवार, ममता, उद्धव और स्टालिन या राहुल बाबा वज़ीर आज़म बनेंगे? कोरोना वापस आया तो आवाम को कौन बचाएगा? ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने यकीनी बनाया कि 130 करोड़ अफराद को वैक्सीन मिले। टीका अंदाजी शुरू होने पर अखिलेश यादव ने इसे मोदी वैक्सीन कहा था, लेकिन खामोशी से उन्होंने अपनी बीवी के साथ रात के अंधेरे में जाकर टीका ले लिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी दौर हुकूमत में ज़मीन माफिया सरगर्म था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस माफिया को रियासत से निकाल बाहर किया। हरियाणा हुकूमत फ्लोर टेस्ट के लिए खुसूसी इजलास बुलाने की कर रही है तैयारी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी रियासत में हुकूमत बनाने से पीछे हट गई, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने कांग्रेस और JJP को घेरने के लिए असम्बली इजलास बुलाने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि हुकूमत 15 मई को होने वाले काबीना इजलास में ये फैसला लेकर अपोजिशन को हैरान कर सकती है। साबिक़ वज़ीर आला मनोहर लाल ने इतवार को इशारा दिया कि हरियाणा हुकूमत लोकसभा इंतखाबात के बाद असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाकर फ्लोर पर अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही गवर्नर ने कांग्रेस से कहा है कि अपने तमाम 30 MLAs के दस्तखतों के साथ एक खत दे ताकि गवर्नर फैसला कर सकें कि क्या करना है। ताहम कांग्रेस ने अभी तक राजभवन से ऐसी हिदायत जारी करने की तस्दीक नहीं की। BJP को फिलहाल 88 रुकन असम्बली में 45 MLAs की हिमायत हासिल है, जबकि JJP और कांग्रेस अपनी पार्टी के तमाम MLAs और एक INLD और एक आज़ाद MLA को शामिल करके BJP हुकूमत की अखिलियत में होने का दावा कर रहे हैं। सुअर की किडनी लगवाने वाले शख्स की 2 माह बाद मौत। अमेरिका के शहर बोस्टन में जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सुअर की किडनी की पेवंदकारी हासिल करने वाला पहला शख्स अमल से गुजरने के तकरीबन 2 माह बाद इंतकाल कर गया। इनके अहलखाना और अस्पताल ने हफ्ते को ये इत्तला दी। 62 साल रिचर्ड सुलेमान नामी शख्स का मार्च में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में गुर्दे की पेवंदकारी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इन्हें उम्मीद है कि गुर्दा कम से कम 2 साल तक ठीक रहेगा।
ट्रांसप्लांट करने वाली टीम ने एक बयान में कहा कि वो सुलेमान की मौत पर बहुत गमज़दा हैं और उनके अहलखाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। ताहम टीम ने कहा कि इनके पास इस बात का कोई इशारा नहीं है कि ट्रांसप्लांट इसकी मौत का सबब बना। रिचर्ड रिक सुलेमान इस तरीक़ेकार से गुजरने वाला पहला जिंदा शख्स था। सुलेमान का 2018 में गुर्दे की पेवंदकारी हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल कुछ पेचीदगियों की वजह से इन्हें डायलिसिस कराना पड़ा था। असम फंक्शन हॉल वाल्टा रोड के पास बुलेट गाड़ी को लगी आग को बुझाने वाले हादसे का शिकार। पानी से और बढ़ती है। पानी में और डरता है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।